Okay, so what was the point? If coefficients are real and a is not equal to 0 obviously for a quadratic, so if discriminant is positive, then roots will be real and distinct. If discriminant is 0, then roots will be real and equal. And if discriminant is negative, then क्या होता है? Roots are complex, imaginary. और देखो लास्ट लाइन लिखा है, if you just thought what is complex dude. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, क्यों? क्या होता है भाई कॉम्प्लेक्स, अद्वैत? I equals to रूट ओवर -1. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक पूरा एक चैप्टर है हमारा, जो कि 12th स्टैंडर्ड में आएगा तुम्हारे पास. हाँ हर्षित कुछ बोल रहा है क्या? ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में. अभी हमको केवल एक आइडिया लेना है कि अगर रूट्स हमारी इमेजिनरी आ गई तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, और ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो इफ यू टेक रूट ओवर -3, so what is root over -3? Root over -3 is root 3 times I. तो एडवांटेज क्या है इसका? इस रिप्रेजेंटेशन से अब तुम्हें आइडिया लग गया कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, इसकी रूट्स रियल नहीं है, तो उसकी जो भी इमेजिनरी रूट्स हैं उनको हम आई की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लाइक x² - x + 1 = 0. So if I ask you to find the roots of this quadratic, obviously you are going to apply the quadratic formula, and that will be x = 1 ± रूट ओवर, बताओ भाई क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट? -3 and whole thing divided by 2. So if for some reasons we could not cover iota or I equals root over -1, this is not informed to us, so we have to leave it right here, like the roots are 1 ± root over -3. But now we know that root over -3 can be represented in terms of I. So what are the two roots of this quadratic equation? One root is 1 + root 3i by 2, and the other root is 1 - root 3i by 2. Understood? तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ऑल राइट, चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है भाई. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटिन्यूड है. नेक्स्ट, राइट. सो इफ आई समराइज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, roots will be real and distinct. Equals to 0, roots will be real and equal. Now anybody tell me, if roots are real and equal, if discriminant is equal to 0, what happens with the quadratic expression? ये तो मैंने बोला ही ना वेदांत. तो रूट्स अगर रियल और इक्वल हैं, यस विदु, वेरी नाइस. तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, हाँ प्रसून, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. टेक अ लुक. x² - 2x + 1 = 0. x² - 2x + 1 = 0. if you calculate discriminant is 0. The two roots are exactly equal, and there is no surprise that this is going to be a perfect square. By perfect square I mean square of a linear
polynomial. So sometimes you will see, you will face some questions where in this question it will say that this quadratic polynomial is a square of a linear polynomial. Find the value of some variable. So in those cases also, question can be solved using d equals to 0. Understood? And yes, and Prapti, you tell me, what about d less than 0? Roots are imaginary, fine. Did I tell you something more? When discriminant is negative, for example, if you look at these two roots, is there anything? Yes. These two roots will be complex conjugate of each other. By complex conjugate we mean, if one root is a plus ib, the another root will be a minus ib. Perfect. Next slide. What was the next point? Okay. Recording on है भाई. अच्छा तुम्हारी Zoom में on नहीं होगी, right? But recording यहाँ पे on है. Don't worry. So we will upload it on YouTube. Okay, Meher. So there are a few questions. I believe हमने कुछ questions solve किए थे class में, and I gave you homework also, and I threatened you properly कि जिन लोगों ने homework नहीं किया उनके साथ ऐसा होगा वैसा होगा. कुछ हो तो नहीं रहा है. I got only 41, 42 submissions. What could be the reason? Okay, बात करते हैं इसके बारे में. So first and second question, I don't think it's required for now. Can you solve third question and tell me the answer? Read it properly, हाँ? देखो question क्या लिखा हुआ है. Determine the value or values of p for which the quadratic expression is square of a linear polynomial in x. So I told you a moment ago, right? If you look at this question, it says quadratic is the square of a linear polynomial. तो हम क्या करने वाले में यहाँ पर वेदांत? Yes, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करो और p की वैल्यू बताओ. वो इसलिए होगा वेदांत, अगर तुम्हें फैक्टर थ्योरम पता हो, if alpha is a root, x minus alpha is a factor. If beta is a root, then x minus beta is a factor. So a quadratic can always be factorized because a quadratic has always two roots, right? What happens when alpha equals to beta? If alpha is equal to beta, then x minus alpha into x minus alpha, this becomes x minus alpha whole square. इसलिए ऐसा होता है, ठीक है? हाँ हाँ, यही तो होता है, रूट्स इक्वल होती हैं, तो घूम के फिर भी पहुंच गया. अरे प्रभु महाराज, थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो रूट्स इक्वल होती हैं. अब तुम्हें प्रूफ करना है दोबारा, रूट्स ना मिलेंगे दोबारा, समझे? नहीं समझ में आया तुमको अभी तक? अरे d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल क्यों होती हैं भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तुम्हारे पास, लगाना उसमें d इक्वल टू डालना. अब वापस वहीं पहुंच गया, पहले पेज पर. क्या आंसर आ रहा है इसका? किसी का आंसर आया? आंसर इज प्लस माइनस 8. तो अगर किसी ने बाय मिस्टेक, भाई तुम्हें p स्क्वायर इक्वल्स टू 64 मिला होगा, करेक्ट? इट डजंट मीन p इक्वल्स टू 8 ओनली, राइट? यहां से दो आंसर्स हैं, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 8. सो टू आंसर्स आर पॉसिबल. डू नॉट फॉरगेट माइनस 8 भी. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस तुम कर लोगे, मुझे पता है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो डिस्कस, राइट? ये हम डिस्कस किया था क्या? बिदु, बिदु कहाँ है? बिदु, डिस्कस किया था हमने ये?
Okay, so go through this slide. I think you don't need any revision because हमने last lecture में ही cover किया था उसको. What are the conditions for roots, both roots to be rational? So there were two conditions. First condition was that all the coefficients a, b, c must be rational, and second condition was, what was that? The discriminant, yes, discriminant should be a square. Square of a rational number भी चलेगा, but ठीक है, perfect square ही बोल सकते हो. And that important point right in the bottom, if you see, a, b, c are rational, but d is not the square of a rational number. What happens in that case? Roots will definitely become irrational, but just like complex conjugate pairs, this time roots will be irrational conjugate pair. That means if one root is 2 plus root 3, then other root will be 2 minus root 3. Correct. Right. So ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं, इस पर हमने क्वेश्चंस किए, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. Where P is rational, last, अच्छा जो उसमें लिखा हुआ है, प्रीवियस स्लाइड पे जाइए, प्रीवियस, हाँ, क्या लिखा हुआ है? Where P is rational and Q is surd. That means कि रूट जो है वो इस टाइप की है, like 2 plus root 3. So 2 is rational and root 3 is, what is root 3? What is root 3? Root 3 is a surd. Correct? इसका मतलब ये, ठीक है ना. नेक्स्ट, अब ये हमारे कुछ क्वेश्चंस, हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे. चलो एक बार डिस्कस करते हैं. हाउ विल यू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन? अद्वैत बताएगा. अद्वैत, इफ यू वांट टू सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट विल बी योर मेथड? क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक with rational coefficients when one root is this. क्या है हमारी रूट? यस. अच्छा, जो लिखा हुआ है आई थिंक, हाँ 1 अपॉन लिखा हुआ है. ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लो, बताओ क्या आएगा. This is 1 upon 2 plus root 5. Is it 2 plus root 5? Yes. So after rationalization, minus ब्रैकेट में 2 minus root 5. परफेक्ट, सभी को मिला ये? minus bracket 2 minus root 5. That means that is minus 2 plus root 5. अब हमने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कवर किया था कि अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल हो और discriminant is not a perfect square, obviously that's why we are getting an irrational root. So irrational root will also occur in a conjugate pair. So if one root is minus 2 plus root 5, then other root will be what? Minus 2? Yes. So if this is alpha, beta will be minus 2 minus root 5. So mistake यहाँ पर ये हो सकती है कि तुम इसको root 5 minus 2 देख कर second root को root 5 plus 2 कर दो. Remember, when I say conjugate, तो जो rational part है, that remains unchanged. The sign of irrational part will change. And now if you have both the roots of this quadratic, you can form the quadratic,
You know how to form the quadratic, correct? X square minus, tell me your answer. What is the answer you're getting? X square plus 4x minus 1. So sum of roots is minus 4, obviously minus minus plus हो गया, and product of roots is minus 1. बिल्कुल सही, वेरी गुड. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो तुम बाद में अटेंड करना, मैं तुम्हें भेजूंगा ये स्लाइड. 2 क्वेश्चंस और हैं, तो हमने उस पर क्वेश्चंस किए थे. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब ये वो पॉइंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किया, राइट? सो वी वांट टू फाइंड द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी इंटीजर्स. देखो हम पहले कहाँ गए? पहले रियल पे आए, फिर हम रियल से रैशनल पे आए, और हम रैशनल से अब इंटीजर पे आ रहे हैं. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बोथ रूट्स टू बी इंटीजर्स? ये स्लाइड हटा दीजिए, उस पर 3 पे क्लिक करिए. हाँ, राइट. सो देखो, कंडीशन, और मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूं, तुम्हें भी सोचना है ना, मुझे बताना है. अंडर व्हाट कंडीशंस, कंडीशन फॉर both roots to be what? Integers. Under what conditions both roots will be integers? और उसको डिस्कस करते हैं. बिकॉज स्ट्रेट अवे अगर मैं तुम्हें कंडीशन बता दी तो मतलब नहीं है ना. Now look at this quadratic equation. ax square plus bx plus c equals to 0. Where? Obviously a is not 0. That's why we are calling this a quadratic. Now you tell me, under what conditions roots will be integers? भाई सबसे पहले जब उसने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इट्स लाइक व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ ह्यूमन, राइट? तो तुम अगर रूट्स को इंटीजर्स बनाना चाहते हो तो रूट्स सबसे पहले रैशनल तो हो जाए. और मान लो रूट्स रैशनली नहीं है तो इंटीजर कैसे हो सकती है? That means whatever conditions were there for roots to be rational, the same conditions will be applied, isn't it? So for the roots to be integers, first of all they must be rational. और rational roots की condition क्या है भाई? All the coefficients must be rational and discriminant should be a perfect square. अब देखो, अगर तुमने ए बी सी को रैशनल रखा, सो एट एनी पॉइंट यू कैन टेक एलसीएम एंड यू कैन मेक देम इंटीजर्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स से दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 माइनस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 0. ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल. बट कैन यू कन्वर्ट these rational coefficients into integers? You can always do that, right? How? By taking LCM. क्या होगा जब तुम LCM ले लोगे? बताओ मुझे, क्या बन जाएगी? एक quadratic. What is the LCM? Come on. How can it be 3x square? 6x square plus 4x minus 3 equals to 0. Why I gave you this idea? Because when I say coefficients are rational, we can always convert them into integers and we can say yes, coefficients are all integers. And then discriminant should be a perfect square. So now if I say
that A, B, C belongs to I. All the coefficients are integers. And second condition is that discriminant is a perfect square. Perfect. Sorry for that squeaking. So if A, B, C are integers and D is a perfect square, do you think these two conditions are sufficient for both roots to be integers? सोच के बताओ. नो सबसे पहले इसलिए तुम्हें बोलना चाहिए बिकॉज ये तो कंडीशंस रूट्स रैशनल होने की हैं भाई, क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया. व्हेन आई से ए बी सी बिलोंग्स टू आई, इंटीजर्स होने चाहिए. रैशनल को तो इंटीजर में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना. सो दीज टू कंडीशंस विल बी सफिशिएंट फॉर रूट्स टू बी रैशनल, नॉट इंटीजर. करेक्ट. बट अगर ये भी रहा तो भी गलत नहीं है. बट अभी रूट्स रैशनल है. सबसे पहले कोएफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. मैं बहुत इजी जो बेस्ट मेथड है मैं उसे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. बिकॉज वी नो अबाउट सम ऑफ रूट्स, वी नो अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? इट इज माइनस बी बाय ए. एंड यू नो अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, alpha beta c by a. Now imagine both roots are integers. दोनों ही roots integers हैं. Alpha is integer, beta is integer. That means what? That means minus b by a should be some integer. That means integer into integer. Product should be also an integer. This must be another integer. Now when I say b by a is an integer, what do you conclude? बताओ भी. इसका मतलब ये हुआ ना कि a b को डिवाइड कर देगा, a b को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और a c को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. हाँ स्वागत. यस. सो b और c दोनों को a डिवाइड करता है. a must divide b and c. And there you got an extra condition. Apart from these two, the third condition is that a must divide b and c. ये जो a लिखा हुआ है ना, ये b और c को डिवाइड करना चाहिए. अगर a b और c को डिवाइड कर देता है तो क्यों ना हम पहले ही इस a से डिवाइड कर दें इस पूरी क्वाड्रेटिक को. अगर हमने इसको a से डिवाइड किया क्या होगा? अगर इस पूरी क्वाड्रेटिक को मैं a से डिवाइड कर दूं, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a. नाउ b बाई a इज एन इंटीजर. लेट्स से इट इज कैपिटल B प्लस c by a, another integer, isn't it? So condition when I said a b c belongs to I is changed to what? ये कंडीशन चेंज होकर देखो क्या बन गई. ये कंडीशन चेंज होकर ये बन गई कि अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 होगा. a equals to 1. And not only that, the other two coefficients b and c must be integers. तो कंडीशन देखो और भी स्ट्रांग हो गई है और होना ही था बिकॉज रूट्स केवल रैशनल नहीं है, रूट्स इंटीजर्स. सो वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस पॉइंट एंड इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड टेल मी. पॉइंट ये है ए बी सी पहले इंटीजर्स होने चाहिए थे, अब हमने चेंज करके उनको ये कर दिया. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 एंड अदर कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स. आर यू गेटिंग दिस? बताओ.
मित्र, हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को इंटीजर बनाया है, तो 2/3 कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। नहीं नहीं, तुम इंटीजर बना रहे हो तभी तो डिविजिबिलिटी की बात होती है। रैशनल से क्या डिवाइड करोगे? क्या कोई नंबर 1/2 से डिविजिबल है? कोई इंटीजर? सारे इंटीजर्स 1/2 से डिविजिबल है। इफ वी टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी, वी शुड टॉक in terms of integers. So tell me if this condition is clear, and if it is, you just note this down. इन दोनों points को note करो. By the time I will clear the board. यस, तो ये दोनों पॉइंट्स तुमने नोट कर लिया। अब ये देख रहे हो, ये यही दोनों पॉइंट्स इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। a equals to 1 and b and c are integers. The discriminant is a perfect square of an integer. Obvious question is, are these two conditions sufficient? Swagatam, what do you think? I want all of you to take your time, 1 or 2 minutes. Think about this. Are these two conditions sufficient? Why don't you write quadratic formula and verify? भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा, उसको नोट करो। देखो, a की वैल्यू वहां पे 1 रखना, and remember b and c are integers. And now think, will the two roots be integers with these two conditions only? अच्छा, तो तुम कह रहे हो, तुम भी यही कह रहे हो कि b को इवन होना पड़ेगा। ठीक है, मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात में। देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। Where is Sharadi? Yes, Sharadi. What do you think? अच्छा, क्या बात, पूरा बैच 2 यूनाइटेड है ऐसे, सभी का आंसर सेम। वेरी नाइस। अब यार ये या तो सारे मतलब बी और सी बचे हुए हैं। सो बी एंड सी बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। हाँ, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। ओके, देखो भाई, उसने थोड़ी रिलैक्स कंडीशन दी है। स्वागतम। नाउ शी इज सेइंग आओ देखते हैं।
Okay, remove it. Yes. So I think तुम वेरिफिकेशन ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे होगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हारा कुछ ऐसा बना होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस आई एम यूजिंग कैपिटल लेटर्स बिकॉज मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक ऐसे ली थी रूट ओवर बी स्क्वायर minus 4c and whole thing divided by 2 because we have already made a 1. Now you are saying b must be even and Shardi is saying b and c both are odd or both are even. Shardi, you tell me how c has any effect in numerator. Tell me. C से हमें कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? The reason I'm asking you is because 4C, 4 is getting multiplied to C. तो अगर 4 multiplied है, right? So it doesn't matter C is odd or C is even. 4C is always even, and all that matters is 4C in the discriminant value. So definitely C being odd or C being even will definitely not matter. Now all of you are saying B must be even. हमें पता चल गया कि C से हमें कोई मतलब नहीं है और देखते हैं ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि B must be even. What if B is even? Come on, participate, discuss. रट तो तुम लोगे यार, लेकिन समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा. What if B is even? See, B is even, so this term is even. What about discriminant? Let's check discriminant is even or odd. Even square is even, minus even minus even is also even, square root of an even value is also even. Even plus minus even में even add कर दो, even में even subtract कर दो, remains even, 2 से divisible हो जाएगा. तो B even होगा, बिल्कुल सही बात है. B even होगा तो रूट्स इंटीजर्स होंगे. But what if B is odd? Let's discuss this. What if B is odd? If B is odd, look at the discriminant once more. B square, odd square. Prasoon, you're gone too soon. Odd square is odd. Odd minus even, क्या होगा प्रश्न? odd minus even, odd का स्क्वायर रूट, odd plus minus odd, even. 3 plus 3, 3 plus 5, 3 minus 5. फिर से एक बार तुम्हारा न्यूमरेटर even बन गया. That means what? B odd भी चलेगा, B even भी चलेगा, B odd भी चलेगा. That means what? Those two conditions are actually sufficient. We need not to think more. If you take an example like the thing about a quadratic whose roots are integers, other way around चलते हैं. X square plus x minus 2 equals to 0. Now roots of this quadratic are integers, we know. One root is 1, other root is minus 2. If you check, coefficient of x square is 1. अब कोई इस पूरी क्वाड्रेटिक को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और बोले कि देखो अब तो कोएफिशिएंट 2 बन गया, तो बात उसकी सही है, बट हम फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बैक टू 1. तो ये 1 है और बाकी सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स, 1 into x minus 2. What about the discriminant value? It has to be a perfect square. 1 plus 8, it is 9. So doesn't matter B is even or B is odd. C से तो फर्क पड़ता ही नहीं. Right? So those two conditions are sufficient. If you look at the slide, sir, 3 press करिए. Slide. Yes. Right. So note these two conditions.
Note these two conditions. And yes, these two conditions. The answer to last line is yes, these two conditions are sufficient. तो क्या सभी को समझ में आया? बिल्कुल हो सकता है. कुछ केसेस ऐसे होंगे भाई, जैसे एक रूट हो गई 1 और दूसरी रूट हो गई हाफ. उस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर हो गई होगा, बिकॉज रूट्स तो रैशनल है ही. लेकिन जो पहली कंडीशन है a इक्वल्स टू 1 वाली, वो सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज सम ऑफ रूट्स इंटीजर नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इंटीजर नहीं होगा, तो b और c a से डिविजिबल नहीं होंगे उस केस में. तो वो तुम देख सकते हो, बट हम फिलहाल उस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं वेयर बोथ द रूट्स आर इंटीजर्स, नॉट जस्ट वन, बोथ. तो सभी ने नोट कर लिया? कम ऑन टेल मी गाइस, नोट कर लिया? वेरी नाइस. नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड, प्लस 3. यस, यस. So you can see there are 4 questions. If you want to take a screenshot, you can take, because we are going to solve first 2 problems. The remaining 2 you will solve at home. You can try these questions at your school, at your home. तो first 2 questions note कर लो और उसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. The very first problem says, find a value or values of k for which this quadratic has integral roots. अब इंटीग्रल रूट्स की कंडीशंस पर वापस जाओ और देखो वहां पे क्या लिखा हुआ था. वहां पर लिखा हुआ था कि भाई रूट्स इंटीजर तब होंगी जब कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे भाई, a इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड b एंड c मस्ट बी इंटीजर्स. तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि जो k है ना, k मस्ट बी एन इंटीजर, है कि नहीं, बताओ. और दूसरी कंडीशन क्या थी? व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो k मस्ट बी एन इंटीजर. Did you note it down? Okay. Remove the slide, please. Press 3. Yes. So k belongs to I and k square minus 16. This time it is not 0. It should be a perfect square. It should be a square of some integer. So now we have a very strange equation to solve. Why? Because we have 2 variables and only 1 equation. Because in simple plain algebra you see, if you have 1 equation, 1 variable, if you have 2 equations, you will get 2 variables. Come on yaar Vedant, I gave you like 3-4 minutes. क्या कर रहे हो तुम? This is absurd. मतलब तो अब तक क्वेश्चन लोड नहीं कर पाए. दिखाओ भाई. प्लस 3. स्क्रीनशॉट लेना आता है? ले लो. हो गया क्या? अरे तू स्क्रीनशॉट ले रहा है, ऑमलेट बना रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो गया ना, गुड. अच्छा, अब बताओ भाई ये सॉल्व कैसे करोगे? आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस. क्वाड्रेटिक ने तुम्हारी हेल्प कर दी है, राइट? क्वाड्रेटिक ने तुम्हें बता दिया कि भाई डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अब डिस्क्रिमिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर लिख दिया मैंने. हाउ विल यू सॉल्व दिस? ना, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का चलो आई प्लस माइनस आई कर देगा, बट व्हाट अबाउट दिस के स्क्वायर माइनस 16? वो तो सॉल्व नहीं होगा. No. When discriminant is a perfect square, it is automatically greater than equal to 0, because अब
square of a real number is already positive, not required. कहाँ है प्रभु हमारे? डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो वेदांत क्यों ना तुम कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में बताओ मुझे वो नंबर्स बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आई एग्री। 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2025 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो काय को 0 बोल रहा भाई? आए come on, swagatam. The same statement was from Sharadi, right? K square minus 16 should be greater than equal to 0. This is a weak condition. When I say K square minus 16 is a perfect square, अगर कोई number perfect square है, it's a square of an integer, do you need to solve K square minus 16 greater than equal to 0? It is obvious. फिर वहीं पहुंच गए यार। अरे भाई, k स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 0 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, मैं मान रहा हूं, बट क्या 0 ही एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दुनिया में। 1 नहीं हो सकता, ये 4 नहीं हो सकता, ये 9 नहीं हो सकता, ये सभी तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अपनी थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ाओ यार, एक्सपैंड करो। ये डेफिनेटली मटेरियल जो है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस लेवल के आ गए, बट एडवांस के भी इजी क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। सो थिंक फॉर ए मिनट, व्हाई डोंट यू मेक अ लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड स्टार्ट टू थिंक, एक्चुअली थिंक, सोचो। किसका वैल्यू? ये तुम बिल्कुल सही बात बोल रहे हो वेदांत, कि जो K5 हो सकता है, K4 हो सकता है, बट क्या हम हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे प्राप्ति? अगर हम हिट एंड ट्रायल करते रहे तो यहां पर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और ऐसा करते करते हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बताओ, हम हिट एंड ट्रायल तो नहीं करने वाले, राइट? कम ऑन, थिंक, बिकॉज दिस इक्वेशन हैज फाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि इसके इनफाइनाइट आंसर्स। सोच सकते हैं, बट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का भी तुम्हें नंबर फिक्स वैल्यूज पता है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू दी हुई है तो रिमेनिंग वैल्यूज यूनिक होंगी या कितनी होंगी? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी तो बहुत सारे होते हैं। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया टर्म्स को। नाउ कैन यू थिंक, k स्क्वायर माइनस i स्क्वायर इक्वल्स टू 16। क्यों ना हम परफेक्ट स्क्वायर्स नोट डाउन करें? 0, 1, 4, 3 स्क्वायर 9, 16, 25, 36, wait, 49, next is 64, 81, and so on. So there goes another hint. Can you now think and tell me? मुझे इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे 81 के आगे परफेक्ट स्क्वायर्स लिखने की जरूरत नहीं है। I want to wait Vedant. I want to find two perfect squares such that the difference of two perfect squares is 16. 25 and 9 is one combination. 0 and 16 is another combination. Are there more combinations?
1 plus 16 is 17, 4 plus 16 is 20, 16 plus 16 is 32, is not a perfect square, 25 plus 16 is 41, 36 plus 16 is 52, 49 plus 16 is 65, 64 plus 16 is 80. बट ये लिस्ट तो इनफाइनाइट है भाई, ये मैं कैसे करूँ कि इसके बाद नहीं होगा? कंफर्म है? यस यस, अगर तुम कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स भी लो, अब 64 और 81 का डिफरेंस 17 हो चुका है, इट इज मोर देन 16. सो डेफिनेटली जब तुम अगला स्क्वायर लोगे, फॉर एग्जाम्पल 100, द डिफरेंस ऑफ 100 एंड 81 विल बी 19. तो ये डिफरेंस अब बढ़ता जाएगा, तुम्हें कभी भी डिफरेंस 16 नहीं मिलेगा. दिस इज वन वे टू सॉल्व इट, विच इज ऑब्वियसली ईजी. अब मुझे मिल गया मेरा आंसर, बिकॉज द टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 16 and 0, 25 and 9. That means what? Either k square equals to 16 or what? No. K square is the bigger value. K square minus I square equals to 16. Right? So when k square is 16, then I square is 0, not k. So what is the other possible value of k square? Yes, it is 25. So what are the values of k? K की values क्या क्या है भाई? Plus minus, come on. Last step पे आके mistake मत करो यार. क्यों mistake करते हो इतनी तुम लोग? K equals to plus minus 4 or plus minus 5. Your affinity, your love, your liking towards the positive numbers is completely understood. I know कि हमें positive numbers बहुत अच्छे लगते हैं, एग्जाम में पॉजिटिव मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन नेगेटिव आंसर्स मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करो उसको ना. सो वी हैव टू पॉसिबल आंसर्स, एंड व्हेन आई से दिस इज द फर्स्ट मेथड, देयर एग्जिस्ट मोर एंड बहुत सारे मेथड्स हैं. Can you now think of another method to solve this question? सोच के बताओ, क्या तुम इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हो विदाउट मेकिंग दिस लिस्ट? दिस वॉज एक्चुअली बेटर. ये जो मेथड था वो अच्छा था, बिकॉज हम बाकी कॉम्बिनेशंस हमें दिख रहे हैं इसके बाद नहीं है. बट ये नंबर अगर थोड़ा बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल ये 16 ना होकर 160 होता, तो मे भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते. That's why I'm looking for another method where I'm not dependent on such lists. Expand मतलब तुम फैक्टराइज करने की बात कर रहे हो? ठीक है, बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके. क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसको फैक्टराइज करके हम लिखते हैं k प्लस आई इंटू k माइनस आई. k प्लस आई इंटू k माइनस आई इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब इसके बाद अब यहां पर आकर वेदांत फिर से एक बार बेसिक मैथ्स. हाँ स्वागतम, क्या बोल रहे? It is not only 16, the only possibility is not 16 and 1. You know there are many possibilities. For example, yes, 16 and 1 is one of them. ये 16 हो गया, 1 हो गया. Actually ये हो नहीं सकता. ये क्यों नहीं हो सकता? You will realize it later जब तुम solve करोगे. It can be plus 16 plus 1, it can be minus 16 minus 1. भाई minus 16 into minus 1 भी तो plus 16 ही होगा. Is it the only combination possible? No. What about 8 and 2? 8 into 2, 16. Right? What about 4 and 4? This is also possible. अच्छा, इसमें इनफाइनाइट आ जाएंगे? वाह वेदांत भाई, बहुत सारे आएंगे बट फाइनाइट आएंगे. इनफाइनाइट लिस्ट ये है, इससे बचो.
अगर नंबर छोटा है तो ये मेथड अच्छा है, लेकिन अगर नंबर बड़ा है ना तो तुम्हें ये मेथड यूज करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर ये तुम 3 देख लो तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो उसको स्विच करना है, +-2 +-8 +-1 +-16। In this case you will not get an answer. Why we will not get an answer here? क्यों नहीं मिलेगा भाई? किसी ने रियलाइज किया? मैं तुम्हें दिखाता हूं। If k plus I is 16 and k minus I is 1, if you add these two equations, you will get 2k equals to 17, which is not possible. Why it is not possible? Yes, k is not integer. Why this happened? Why we are not getting an integer value? Because one is even, another is odd. You cannot take such combinations where one value is, where sum is even and difference is odd. ऐसा possible नहीं है, क्योंकि ऐड करने के बाद हमको odd मिल जाएगा और आंसर नहीं आएगा. So apart from this case, if you take any other case, you will get your answers. For example, +-8 +-2. जब तुम 8 और 2 को ऐड करोगे, you will get 10. आंसर क्या आएगा? 5 +-5. Same answers, +-5 +-4. मिल जाएंगे आंसर्स. So this is the second method. ठीक है भाई? तो अगर तुम्हें समझ में आया, I hope सबको समझ में आया होगा. Why don't you try question number 2 and save the other 2 questions for homework? Slide. Press 3. Yes. तो अगर तुमने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो देख लो भी सेकंड क्वेश्चन और ट्राई करो. आई गिव यू 3-4 minutes to solve this question. Solve. Second question says, find the value of k for which the quadratic equation, और इस बार ये quadratic थोड़ी डिफरेंट तरीके से लिखी हुई, x minus a into x minus 10 plus 1 equals to 0. तो किसी का भी अगर आंसर आता है तो बताओ भी. I'm sorry, k लिख दिया है वहां पर, a लिखा होना चाहिए. एक्चुअली हमको a की वैल्यू निकालनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a, नॉट k. तो k को a कर लो भैया. सेकेंड क्वेश्चन में k की जगह पर a कर लो. फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a for which this quadratic equation has integral roots. If you follow the same steps, you will get your answer. वैलिड होता वेदांत? 2 से डिवाइड करते और बोलते k must be even, k/2 must be integer. समझे? हाँ ठीक है, k/2 को a एज्यूम कर लो और सॉल्व कर लो, उसमें क्या है. तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो भाई और देखो कितने लोग का आंसर आता है. हर ऐसे क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेट लेना ही होगा ना. अगर रूट्स इंटीजर हैं तो कंडीशन क्या है हमारी? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो पिछले क्वेश्चन का अगर तुमने सोल्यूशन नोट किया हो, हमने क्या किया था? d इज इक्वल टू i². तो वो मेथड तो है ही हमारे पास.
हाँ भाई, क्या हुआ? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? इतना डिफिकल्ट है ये? करो, ट्राई करो। भाई अगर तुम सेम स्टेप फॉलो करो जो तुमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, यू विल गेट योर आंसर, यू मस्ट गेट योर आंसर। 12 and 8, देखते हैं। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं भाई? 12 and 8 सही है उसका आंसर? अच्छा ठीक, ले लो। आई थिंक इन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अब देखो, तुमने एक एडवांस कैलिबर प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया? स्लाइड हटा दो। ठीक। x minus a into x minus 10 plus 1 equals to 0. 12 and 8, क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है। ये भी कुछ बात। सो आई थिंक सभी ने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट, a plus 10 into x and 10a plus 1 equals to 0. All the coefficient must be integers. So a is an integer for sure. A is an integer. But then the discriminant, which is a plus 10 whole square minus 4 times 10a plus 1, this should be I square. तो पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत सिंपल इक्वेशन तो नहीं है, बट अगर तुम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, यू विल रियलाइज दैट a plus 10 whole square, I'm not simplifying this, look at this, minus 40a and minus 4 equals to I square. Now look at these two. A plus 10 whole square minus 40. अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है a plus b whole square minus 4ab, which is what? A plus b whole square minus 4ab is a minus b whole square. तो ये क्या लिखा हुआ है? a minus 10 whole square. फिर से एक बार मैं I स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और देखो नहीं, ये नंबर फिर से बहुत छोटा है, 4. So method 1 is again useful, better. Tell me the two perfect squares whose difference is 4. Do we have two perfect squares whose difference is 4? How many perfect squares are possible whose difference is 4? Come on, 4 and 0 नहीं है ही नहीं। अरे 4 0 यार, तो हो जाएगा। 0 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 0 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है। यस, a minus 10 whole square 4 or I square 0. There is no other possibility. And how I can guarantee this? Because if you look at the next square, 3 square, which is 9, 9 और 4 का डिफरेंस 5 हो जाता है, 4 से बड़ा हो जाता है, तो आगे 4 मिलने का चांस ही नहीं है यार। So the only possibility is a minus 10 का whole square should be equal to 4, which implies a minus 10 equals to what? Very good.
अब तुम लोग प्लस माइनस बोलना शुरू किया, वेरी नाइस. सो a minus 10 is plus minus 2. So what is a? A is 8 or 12. So this completes the solution. देख लो सेम स्टेप्स. अगर ये क्वेश्चन आया तो ये मेथड हमेशा काम करेगा, बट देर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेट अप्रोच. फिर से वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, फैक्टराइज करके आंसर निकालना ठीक है, वो तुम कर लोगे. राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन दिस क्वेश्चन एक दूसरी अप्रोच से क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. थिंक एंड टेल मी, क्या होगी वो अप्रोच? सोच के देखो. और मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि क्वेश्चन को इस तरीके से देखो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है x minus a into x minus 10. Do not multiply these two factors. Instead, take plus 1 to right hand side. X minus a into x minus 10 is equal to minus 1. If both roots are integers, a is also an integer. Find the value of a. What is happening here? क्यों लिखा मैंने ऐसा इसको ऐसा? Think. हाँ बात तो सही है, इसका मतलब तो यही है, बट उससे क्या? If x is an integer, if a is an integer, x minus a is also an integer. If x is an integer, if 10 is an integer, 10 is obviously an integer. Again, this is an integer. Product of two integers is minus 1. अब तो सोच लो, ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 1 होगा? Yes, x minus a equals to 1 or x minus 10 equals to minus 1. This is one possibility. What is the other possibility? X minus a is minus 1 and x minus 10 is 1. Tell me if there exists more possibilities. है क्या? बताओ. नहीं होगा ना? And if you want to find the value of a, what will you do? You will subtract to eliminate x. You have to subtract these two equations and you will definitely find the value of a. Subtract and check. Same answer मिलता है क्या? Check करो. What if you subtract minus a plus 10? Subtraction कर लो यार. Minus a plus 10 equals to 2. So what is the value of a? 8. And subtract here. Minus a plus 10 equals to minus 2. And a equals to 12. ठीक है ना? तो जो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हैं उनको घर पे सॉल्व करना. और हालांकि हमारे पास एक पॉइंट और है कवर करने के लिए आज, बट टाइम काफ़ी हो चुका है, तो छोटा सा एक पॉइंट मैं कवर करूंगा थ्योरी का, और उसके बाद जो है अगर कुछ डाउट्स हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लो. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या बताओ? नहीं वेदांत, सोचो यार, सोचो कि दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट माइनस 1 आ रहा है, तो क्या तुम किसी से पूछोगे कि वो पॉसिबिलिटीज क्या है? तुम्हें ऑब्वियसली पता नहीं है कि दोनों की वैल्यू या तो एक की वैल्यू 1 दूसरे की वैल्यू माइनस 1 होगी, या फिर पहले की वैल्यू माइनस 1 दूसरे की वैल्यू प्लस 1 होगी. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी थोड़ी ना यहां पर, राइट? सो माय नेक्स्ट पॉइंट is common roots, but obviously
We are not going to cover the entire subtopic. The first theory is very easy actually and it's very short. It will take only 2 minutes. तो वो काम कर लेते हैं, जो दूसरी theory है वो हम next class में करते हैं. Common roots, ये सब टॉपिक का नाम सुन के तुम समझ गए हो कि बात क्या हो रही है. क्या बात हो रही है भाई? हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली more than one quadratic की. Because when I say common roots, there must exist more than one quadratic. तभी तो कुछ common होगा. So let's assume there are two quadratic equations. a1x square plus b1x plus c1 equals to 0. ये हमारी पहली quadratic. The second quadratic is a2x square plus b2x plus c2 equals to 0. We have two quadratic equations. Obviously quadratic अगर ये है, so a1 is not 0 and a2 is not 0. तुमको पता ही है. Now when I say these two quadratic equations have common roots, then what are the possibilities? Tell me guys. Common roots की possibilities क्या क्या हैं? भाई दोनों रूट्स कॉमन हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो दूसरी ना हो, है कि नहीं? तो यहां पर वो दो केसेस में वही मैं कह रहा हूं कि पहला केस हम केवल यहां डिस्कस करने वाले हैं. एंड द फर्स्ट केस इज व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन. बोथ रूट्स आर कॉमन. एंड ट्रस्ट मी, दिस पॉइंट इज वेरी इजी. तुम बहुत आराम से खुद सोच सकते हो कि अगर दो क्वाड्रेटिक हमारे पास हैं और दोनों ही रूट्स कॉमन हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस, फॉर व्हाट टाइप ऑफ कोएफिशिएंट्स इट इज पॉसिबल. थिंक एंड टेल मी. सोचो. दोनों कोइंसाइड करेंगे. ओके, ग्राफ पर शरीर तो मतलब नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं, it is not necessary because the graph will be of quadratic polynomial and this polynomial can be changed. Just tell me in terms of coefficients a1 b1 c1 and a2 b2 c2, under what conditions both roots will be common. बात तो सही कर रहा है कि अगर यहां पर दोनों के रूट्स अल्फा बीटा हैं, इफ आई टेक सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स दोनों में सेम ही आएगा ना. इसका मतलब माइनस b1 बाई a1 शुड बी इक्वल टू माइनस b2 बाई a2. परफेक्ट. देखो कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम होने जरूरी नहीं है. दैट यू विल सी. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c1 बाई a1 c2 बाई a2, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, है ना. सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों सेम होने चाहिए. इफ यू क्लब दीज टू कंडीशंस, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे मैंने अगर टर्म्स को रीअरेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट a1 बाई a2 equals to b1 by b2, and in second result again if I rearrange terms, a1 by a2 equals to c1 by c2 also, right? So this is the condition under which both the roots will be common, will be same. और ये बहुत ऑब्वियस नहीं था भाई. इसकी दो ही रूट्स हैं, इसकी भी दो ही रूट्स हैं और दोनों सेम है, तो एक तरीके से क्वाड्रेटिक सेम होनी चाहिए. बट क्वाड्रेटिक हो सकता है डिफरेंट दिखे, और उसका रीजन क्या होगा? हो सकता है कि हमने किसी एक वैल्यू से इस क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई कर दिया. कोएफिशिएंट्स चेंज तो हो जाएंगे बट रूट्स चेंज नहीं होंगे बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विद द सेम वैल्यू, राइट? So the change is same. That's what the condition says, that the ratio of
A1 A2, B1 B2 and C1 C2 is going to be same. Is this understood? Let me give you an example. X square minus 1 equal to 0. Roots क्या है? Plus minus 1. If you multiply this entire equation by 2, 2x square minus 2 equal to 0. Roots क्या है? Still plus minus 1. But क्या कोएफिशिएंट सेम है? I know तुम बना सकते हो, तुम्हारे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होगी, चलो 2 से डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कर देना. बट अगर मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट्स में रिलेशन क्या है, दे आर नॉट इक्वल बट दे आर इन सेम रेशियो. 1/2 इक्वल्स टू -1 upon -2 विच इज हाफ. अंडरस्टूड? बताओ ये कंडीशन को समझ में आई? गुड. देन नोट डाउन द कंडीशन एंड लुक एट दिस स्लाइड. The other slide. Press 3. Yes. So look at this slide. Same statement जो मैं तुमने लिखवाया. The required condition is A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. So before we end today's lecture, I want you to solve just one more problem. In these examples, solve first question. पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी दोनों स्क्रीनशॉट लेकर उनको सॉल्व कर लो. First question is what? Ax square plus bx plus c equals to 0 and 2x square plus 5x minus 13 have both roots common. Then find the value of 3a plus 2b plus 2c. किसी का आंसर आया और बताना भैया. Yes. Come on, it's taking too long यार. इसमें टाइम क्यों लग रहा है? हाँ? कहाँ है सब? क्या आंसर है वेदांत? -5 कैसे? एक्सप्लेन में. भाई कंडीशन सेज a by 2 equals to b by 5 equals to c by -13. यही है ना वेदांत? अगर मैं इस पूरे को इक्वल्स टू k एज्यूम कर लूं, नहीं दादा वेदांत शर्मा, अगर मैं इस पूरे को k एज्यूम कर लूं तो a इक्वल्स टू 2k, b इक्वल्स टू 5k, c इक्वल्स टू -13k. आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट दिस. तुम्हें समझ में आ रहा होगा? Now put these values in 3a plus 2b plus 2c and tell me what do you get? Yes, आपका आंसर 0 आना चाहिए. भाई 3 times 2a 2k sorry 2 times 5k plus 2 times -13k क्या जाएगा? बताओ यार. 0 आ रहा है क्या? एक मिनट, कैसे? 6k, हाँ 0 नहीं आ रहा भाई. कैलकुलेशन, हाँ भैया पहला ही होगा. पहला देखो ना, 3 into 2k 6k हो गया, 2 into 5k
10k हो गया, तो 10k प्लस 6k क्या हो गया 16k माइनस 26k। तो आंसर क्या आ रहा है माइनस 10k। ये आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आ रहा है? मैं करूं क्या दोबारा? नहीं कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते ना भाई। a/2 इक्वल्स टू क्या था b/5 c/-13 नॉट 13। अब ऐसा किसी भी क्वेश्चन में व्हेन यू हैव रेशियोज और प्रोपोर्शंस इट्स ऑलवेज बेटर टू अज्यूम ऑल ऑफ देम इक्वल टू k। सो a इक्वल्स टू 2k, b इक्वल्स टू 5k, c इक्वल्स टू -13k। आई थिंक वहां पे एक्सप्रेशन कुछ रॉन्ग बिकॉज आंसर इसका 0 दिया हुआ है, बट गलत है। और वेदांत तुम्हारा 0 कैसे है अभी? कौन सा मल्टीप्लाई करके तुमने उसको 10 ले लिया? कैसे लिया? कोई बात, चलो होता है। 2b क्या हो गया 10k और 2c हो गया -26k। सो ऑब्वियसली आंसर -10k आएगा, where k can be any value, that means answer can be anything. Technically answer of 3a plus 2b plus 2c can be anything because k can be anything, k कुछ भी हो सकता है, right? So note down other two questions, try to solve, और तुम्हें सेकेंड क्वेश्चन में दिखाई देगा स्लाइड एक बार 3, तुम्हें सेकेंड क्वेश्चन दिखाई देगा, वहां पे लिखा हुआ है हैव अ कॉमन रूट। लेकिन हमने जो थियोरी पढ़ी है वो तो बहुत कॉमन रूट्स की है, तो यहां पर अ कॉमन रूट लिखा जरूर है, बट फॉर सम रीजन both roots are common. Now what is that reason? You have to, otherwise question तो कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन में कहा show that ratio of ABC is 1:9, तो ये तो हमें कंडीशन पता ही है A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, but this condition is applicable if both roots are common. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है one root common, I mean not exactly one but a root, that means at least one root common. So why both roots must be common, ये तुम्हें बताना है। बात समझ में आ गई? नहीं, जब तुम सॉल्व करके आओगे तब बताओगे, ठीक है? So we're done for the day, okay?